learning process. I'm affiliated with GC University Lahore in the Department of Artificial Intelligence nowadays, and I'm the founding program coordinator of Department of Artificial Intelligence. रिसेंटली ये डिपार्टमेंट और ये प्रोग्राम जो है वो हमने लॉन्च किया है यहाँ पर जीसी यूनिवर्सिटी में. Along with that, I am the founding advisor of Futuristic Artificial Intelligence Society, which is a student level society. और ये सोसाइटी मैंने यहाँ पर रिसेंटली फाउंड की है जहाँ पर हम अमंग आवर स्टूडेंट्स हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं. Along with that, I'm also advisor of two other student level societies, which are IEEE GCU student branch and GCU ACM student chapter. So here's a brief introduction of myself. I'm a dedicated student of computer sciences, particularly working in the domain of artificial intelligence, and I have studied computer sciences since my matriculation days. Started with metric with computer science, then intermediate with computer science, and then honors in computer sciences with my project in artificial intelligence, and then MPhil and PhD in computer sciences with specialization in natural language processing and machine learning, which are subdomains of artificial intelligence. Till now, I have published more than 15 research papers in different leading national and international journals and conferences. And on these research papers, I have received 150 independent citations from renowned researchers all over the world. Along with that, I have also supervised more than 30 MPhil level research theses in the area of artificial intelligence and have successfully supervised more than 100 BS level projects, particularly in the domain of artificial intelligence. Along with that, I'm also supervising 2 PhD students nowadays. The research problems and areas जिनके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ अपने students के साथ, that includes intelligent Quranic search engine, जिसके अंदर हम जो अभी तक Quranic search engines available हैं वो ये होली स्क्रिप्चर्स के ऊपर जो अभी तक काम हो रहा है दैट इज बेस्ड अपॉन द कीवर्ड्स. जिस तरह से गूगल के अंदर हम कीवर्ड्स टाइप करते हैं और हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, हम इसकी जगह पर कॉन्सेप्ट बेस्ड सर्चिंग का काम करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ रिसर्च पेपर्स हम इसके ऊपर ऑलरेडी पब्लिश कर भी चुके हैं और कुछ काम अभी इसके अंदर चल रहा है. इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह के ऊपर भी हम कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं. जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनको एनालाइज करके वी आर ट्राइंग टू जज इफ एनी पर्सन हैव एनी सॉर्ट ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन इश्यूज और नॉट. सिमिलरली जो प्रोडक्ट रिव्यूज हैं उनके ऊपर हमने थोड़ा सा काम किया है. डिफरेंट एप्लीकेशंस आप ओपन करते हैं लाइक दराज, उसके ऊपर जो यूजर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो जो रिव्यूज करते हैं उन रिव्यूज का सेंटिमेंट एनालिसिस हम करने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा डिजीज डिटेक्शन एंड प्रिडिक्शन के अंदर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कैंसर डिजीज के ऊपर अभी तक कुछ काम हमने किया है. सो दैट वाज अ ब्रीफ प्रोफाइल. सो जो डिस्कशन हमें करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दैट क्वेश्चन इज दैट in 50 years from now, will there be a human or a robot teaching us? That is one kind of common question, one common issue जो normally जब भी हम AI की बात करते हैं तो हमें सुनने को मिलता है that the machines will be going to take over us, और एक ज़माना आएगा, एक वक्त आएगा कि जहाँ पर machines जो हैं वो take over कर लेंगी and they will start killing human beings and all that. सो इस किस्म के जो मिथ्स हैं वो अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं. Although I'm not going into this debate right now कि whether it is possible or not, बहुत समराइज्ड वे के अंदर अगर मैं कहूँ तो in simple words I can say that कि killing machines जो हैं या robots taking over us, it is not going to happen in any near future or even in far future. That is not going to happen, and we have so many certain reasons to आर्ग्यू लाइक दैट. बट इस क्वेश्चन से ज्यादा मेरे ख्याल में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना चाहिए, जिस क्वेश्चन के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, दैट क्वेश्चन इज what kind of combination of human and artificial intelligence will be able to draw on in the future to provide
best quality teaching. So, from my perspective, the question should not be whether in future, near future, or far future, robots will be teaching us or not. Our question should be, and we should be concerned about that, how we can utilize artificial intelligence to improve the teaching learning standards in our teaching learning environment. सो बीइंग ए टीचर, जो सबसे बड़ा कंसर्न है मेरे ख्याल में, वो कंसर्न मेरे लिए ये शायद इम्पोर्टेंट कंसर्न नहीं है कि 10-20 साल के बाद कोई रोबोट मेरी जगह लेगा या नहीं लेगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसर्न ये है कि क्या उस रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, क्या मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। So, in today's discussion, I'll be discussing about the possibilities and opportunities that artificial intelligence creates for us, and we'll be talking about a artificial intelligence को और जो technologies related to artificial intelligence and जो tools available हैं AI based, उनको use करते हुए हम overall teaching learning environment को कैसे improve कर सकते हैं। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द टूल्स, हम आगे चलकर इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। सो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर जनरेट होता है, दैट क्वेश्चन इज कि एआई इंपॉर्टेंट क्यों है। हम ये बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग स्टैंडर्ड्स, बट द क्वेश्चन इससे भी पहले जो एक हमारे सामने आता है वो ये कि whether it is really important, is it really important कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर यूज करें। सो क्या ये काम करना जरूरी है, क्या हमें इसकी वाकई जरूरत भी है, या ये जस्ट एक बज़ टर्म है जो क्रिएट हो गई है और हमें इसका टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर कोई फायदा नहीं है। सो अगर हम इसके ऊपर बात करने से पहले एक स्टेटिस्टिक्स में अगर आपके साथ शेयर करूं, I was looking over a news article last day, and उस news article के अंदर there was one thing which was very surprising for me. That statement was कि in last year, second year के अंदर, पंजाब के अंदर second year में अराउंड 0.8 मिलियन, तकरीबन 8 लाख स्टूडेंट्स थे जो सेकेंड ईयर के एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे इन लास्ट ईयर। I don't know how much true this statement is, but most possibly ये इंफॉर्मेशन ठीक ही होगी जो शेयर की है मैंने आपके साथ। कमोबेश इतने स्टूडेंट तो यहाँ पर मौजूद होंगे, बट द क्वेश्चन हेयर इज कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पंजाब के अंदर सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, द क्वेश्चन हेयर इज के कितने परसेंट स्टूडेंट्स इनमें से हायर एजुकेशन को अचीव कर पाएंगे। इन 8 लाख स्टूडेंट्स में से जो सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स होंगे जो जाकर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकेंगे। क्या हमारे पास इतने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जो इन 8 लाख स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकती हों? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। हमारे पास ले दे के पंजाब के अंदर कोई 60-65 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं। ये यूनिवर्सिटीज इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बर्डन शेयर नहीं कर सकती। सो जब इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर अकोमोडेशन मौजूद नहीं है कि, और या स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि वो हायर लेवल एजुकेशन को अचीव कर सकें। सो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू इज टू एजुकेट, टू spread awareness about artificial intelligence and the technologies related with artificial intelligence to the teachers like you. सो जब हम अपने स्कूल टीचर्स को और कॉलेज टीचर्स को इक्विप कर रहे होंगे, उनके अंदर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे होंगे अबाउट हाउ दे कैन यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू देयर एक्चुअल टीचिंग एनवायरनमेंट्स, तो मे बी ये एजुकेशन जो है, ये अवेयरनेस स्टूडेंट्स तक भी जा सकती होगी सेकेंड लेवल के ऊपर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक नहीं भी जा सकते, उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए अपने लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते होंगे। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ स्टेटिस्टिक्स मैंने यहाँ पर आपके सामने शेयर किए हुए हैं, विच स्टेट्स के ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका the AI and machine learning jobs will be growing by 40% every year. And by 2027, just in United States of America, there will be over 1 million new jobs, apart from those jobs that are already in the job market.
So yes, definitely AI is going to be a game changer. And the sooner we understand that very concept that AI is going to be the game changer, we can remain in the business of education, in the computer sciences, in the business of artificial intelligence very longer. और अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज एआई की मदद से क्रिएट हो रही हैं, हम और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाएंगे अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते. सो दिस इज द टाइम दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, हाउ वी कैन यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उससे और कुछ ना भी कर सकें, हम जो कम से कम टास्क परफॉर्म करते हैं एज ए टीचर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हम उन टास्क को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम अपना बर्डन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो विद सम क्लिक्स परफॉर्म की जा सकती हैं, उन चीजों के ऊपर अपना टाइम जाया करने के बजाय उस टाइम को ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज करने के बारे में सोच सकते हैं. सो दैट इज द वेरी रीजंस के कॉलेज प्रोफेसर्स को इस अवेयरनेस की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं. So we'll be starting our discussion with some definition of artificial intelligence according to John McCarthy, who stated in 1956 that this artificial intelligence is the science and engineering of making intelligent machines. This gentleman, the John McCarthy, is the founding pioneer of, is one of the scientists जिन्होंने इस पूरी artificial intelligence की डोमेन की बुनियाद रखी. और इन्होंने एक्चुअली डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर 1956 के अंदर इस बारे में सोचना शुरू किया दैट वी हैव टू डिजाइन इंटेलिजेंट मशीन्स. इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फर्दर इलेबोरेट किया गया लेस्ली की जानिब से, और लेस्ली ने 2021 के अंदर ये कहा कि एआई सिस्टम्स आर एल्गोरिथमिक मॉडल्स. एल्गोरिथमिक मॉडल्स का मतलब ये है कि ये जो एआई टेक्नोलॉजीज हम देखते हैं, ये जो एआई के बारे में हम सारी बात करते हैं, this artificial intelligence is nothing other than some algorithms. ये उसी तरह के algorithms हैं जिस तरह के algorithms, जैसे अभी जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं विच इज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम को प्रोग्राम करने के लिए कुछ algorithms लिखे गए हैं, इसी तरह से एआई टेक्नोलॉजीज के बिहाइंड भी कुछ algorithms हैं जो काम कर रहे हैं. सो इट इज नॉट एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंग, या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई मैजिक है और कहीं से कोई चीज आ रही है और चीजें बनना शुरू हो गई हैं. सो दीज आर प्रोग्राम्स, जस्ट प्रोग्रामिंग की बेस के ऊपर. वो प्रोग्रामिंग अलबत्ता करने के लिए जो इंस्पिरेशन हम लेते हैं, वो इंस्पिरेशन हम ह्यूमंस की कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल फंक्शन से लेते हैं. हाउ ह्यूमन रिकॉग्नाइज समथिंग, हाउ ह्यूमन परसेप्चुअली परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इनटू देयर ब्रेन, उन जो फंक्शनैलिटीज हैं, उन जो रूटीन्स हैं, जिन रूटीन्स के तहत हमारे ब्रेन के अंदर थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, उसको स्टडी करने के बाद उसी को हम मॉडल करने की और सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं. एंड बेस्ड अपॉन दोज एल्गोरिदम्स we can design machines that can think, that can judge, and that can reason just like human beings. So we can see and we can say that artificial intelligence is nothing other than the extension of human intelligence. So it is actually a part of human intelligence, और उसी को हम अपनी betterment के लिए और अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं. Although globally artificial intelligence के ऊपर बहुत सी adaptation already start हो चुकी है, people are working devotedly on artificial intelligence. कुछ चीजें हमारे सामने बन चुकी हैं. So we can say AI is all about intelligent agents that can perform intelligent tasks. AI is about text to speech systems. आप कोई भी टेक्स्ट लिखें उसको स्पीच में AI की मदद से कन्वर्ट किया जा सकता है. आप कुछ भी बोलें उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है. कस्टमाइज शॉपिंग हम AI एप्लीकेशंस की मदद से कर सकते हैं. लाइक सम ऑफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस दराज एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी फेमस है. जब आप उसके ऊपर कुछ परचेजिंग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करेंगे, वो आपकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक आपको प्रोडक्ट शो करने शुरू कर देता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आप इंटरेस्टेड होंगे, बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस जो हम दराज के ऊपर करते हैं. और सिर्फ ये कस्टमाइज शॉपिंग के अंदर यूज नहीं होता. अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक आपको फ्रेंड सजेशंस देना शुरू कर देता है, पोस्ट सजेशंस देना शुरू कर देता है. आपकी प्रोफाइल और आपकी प्रेफरेंसेस की बेस के ऊपर वो एडवर्टीजमेंट आपको शो करना शुरू कर देता है.
सो इसी तरह से यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाते हैं और आप यूट्यूब को यूज करते हैं तो वहां पर यू सी के यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियो सजेशंस के अंदर आ रही होती हैं। अगेन वो यूट्यूब या फेसबुक या इस तरह की जितनी एप्लीकेशंस हैं ये आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं और उस प्रोफाइल की बेस के ऊपर दे जज कि कौन सा कंटेंट आपको दिखाना चाहिए और कौन सा कंटेंट आपको नहीं दिखाना चाहिए। इसके अलावा रोबोटिक फार्मिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रही है। आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे एक पीएचडी के स्टूडेंट हैं जो अभी इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, दैट इज अबाउट फेक न्यूज। एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि न्यूज हमारे सामने शेयर हो रही होती हैं एंड वी कैन नॉट टेल कि ये न्यूज जो शेयर हुई है ये ऑथेंटिक न्यूज है या फेक न्यूज है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट सिनेरियो के जो सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट न्यूज शेयर होती हैं उनको हम कंटेंट की बेस के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकें कि वेदर ये न्यूज जो है ऑथेंटिक है या नहीं। तो इस तरह से फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है। फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेशन और रियल टाइम ट्रांसलेशन के अंदर काफी सारा काम हो रहा है। मैपिंग एंड नेविगेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको हम में से मोस्टली लोग अक्सर यूज करते होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल मैप्स। और वो हमें किसी भी जगह के ऊपर हमने जाना है तो डेस्टिनेशन तक जाने का ना सिर्फ रास्ता हमें बता देता है बल्कि ऑल्टरनेट राउट्स प्रोवाइड कर देता है। वो टाइम एस्टिमेशन करता है कि हम इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर कितनी देर में पहुंच जाएंगे। अगर ट्रैफिक कंजेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो उस कंजेशन के अंदर वो हमें ये गाइड करता है कि कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एस्टिमेशन गूगल कर रहा होता है, गूगल मैप कर रहा होता है, ये बहुत एक्यूरेट होती हैं। 80 to 90% टाइम्स ये एस्टिमेशन बिल्कुल ठीक होती हैं और उसके अंदर कोई ज्यादा 1-2 मिनट से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता। So, based upon these applications, we can say very confidently that artificial intelligence is in our lives and industries. So, ये जितनी भी applications मौजूद हैं, इन तमाम applications को हम कहते हैं that these are intelligent applications और these are intelligent agents. So, इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिथ्स हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं या कंफ्यूजन्स हैं जो सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। वन ऑफ द कंफ्यूजन इज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट एआई इज नॉट अलाइव। सो कंफ्यूजन ये है कि हम जब रोबोट्स देखते हैं तो इस कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि मे बी किसी टाइम के ऊपर ये रोबोट्स जो हैं वो कॉन्शियस हो जाएंगे एंड दे विल बी अलाइव लाइक अस। सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। एआई इज not about alive things. Again, AI is not about killer robots. I normally used to say that thing to my undergrad students जब हम artificial intelligence की introductory classes होती हैं। normally उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि जितने इन दूसरे इंसानों को मारने के मामले के अंदर हम खुद कफील हैं, जितना दूसरे इंसानों को ज्यादा आसानी और खूबसूरती के साथ हम इंसान खुद मार सकते हैं, तो इसके लिए हमें रोबोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अब रोबोट्स भी बनाएं जो आकर हमें मार रहे हैं। सो ये जो फिक्शन में जस्ट एक यहाँ पर मेंशन किया है कमेंट के अंदर, आई रोबोट्स की हम बात करें या टर्मिनेटर्स की बात करें, सो दिस इज जस्ट अबाउट फिक्शन। ऐसे किलर रोबोट्स जो हैं जो कॉन्शियसनेस को अचीव कर लेंगे और उसकी बेस के ऊपर खुद से इंसानों का खात्मा करना शुरू कर दें। एआई इज नॉट अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। Again, AI is not only for genius persons. So people like us, हम लोग ही हैं जो काम करते हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो काम करते हैं। सो इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस जिसको समझने के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आप एआई को समझ सकते हैं या काम कर सकते हैं। Obviously, it is not for people living in the tech cities, and AI is not always physical. एआई का मतलब सिर्फ रोबोट्स नहीं है, बल्कि हमने जितनी भी ये एप्लीकेशंस की बात की है वो एप्लीकेशन सारी की सारी ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जस्ट लाइक अदर एप्लीकेशंस, अदर सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं। सो एआई यस फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है और एआई जो है वो हमारे पास इस सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकती है। इट कैन बोथ फिजिकल एंड द सॉफ्टवेयर एज वेल। The most important thing and the most important myth is that AI is not going away. हम किसी स्टेज के ऊपर, और नॉर्मली ये कमेंट जो है वो अक्सर हो जाता है कि हमें एआई को सीखने की जरूरत नहीं है एंड इट विल रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट। सो लेट्स सपोज if it is going to happen, even if it is going to happen,
सो हमारे आंखें बंद कर लेने से या हमारे एआई का बाइकआउट करने से हरगिज ऐसा नहीं होगा कि बाकी पूरी दुनिया जो है वो भी इसका बाइकआउट करने लग जाएगी. The people who are working in this domain, they are working in this domain, and they are not going to stop their research and development in the domain of artificial intelligence. So हम अगर इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो सिर्फ ये होगा कि फॉर इंस्टेंस अगर हम आज दुनिया से 10 साल पीछे हैं तो माइट भी हम दुनिया से मजीद 10 साल 20 साल पीछे चले जाएंगे अगर हम एआई के ऊपर अडॉप्ट नहीं होंगे. बट अगर हम एआई को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, हम एआई से खुद डरना छोड़ देंगे और इस टेक्नोलॉजीज को यूज करना स्टार्ट कर देंगे और इसके बारे में अवेयरनेस लोगों को स्प्रेड कर रहे होंगे, तो फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो अपॉर्चुनिटीज बाकी पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट हो रही हैं, हम भी उन अपॉर्चुनिटीज के लिए अपना हिस्सा शामिल कर सकते होंगे. हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारी जो जनरेशन है, वो फ्यूचर जनरेशन जो हैं वो इन टेक्नोलॉजीज को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकती होंगी. सो हमारे आंखें बंद कर लेने से एआई खत्म नहीं होगी, नुकसान सिर्फ हमारा होगा कि हम उसके ऊपर एडॉप्टेड नहीं होंगे. सो बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन कि हम एआई को अपने एजुकेशन एनवायरनमेंट के अंदर, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के अंदर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आई वांट टू शेयर सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स जो हमारे सामने मौजूद हैं जहां पर एआई यूज हो रही है. वन बेसिक कॉन्सेप्ट इज ऑफ स्मार्ट होम्स. दिस कॉन्सेप्ट इज कि आप एआई एप्लीकेशंस की मदद से ऑटोमेटेड वे के अंदर अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं. So you can control the temperature, you can control security parameters, you can control networking, you can control light and cameras. Each and everything can be controlled through an application. इसके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है रिसेंटली और उसको यूज करते हुए पूरे घर को हम एआई एप्लीकेशंस, एआई इनेबल्ड कर सकते हैं और एआई एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं. स्मार्ट वॉचेस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है. पहले किसी जमाने के अंदर बहुत बड़े साइज के कंप्यूटर्स होते थे, अब वो सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस और प्रोग्राम्स जो हैं वो एक स्मार्ट वॉच की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं. स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इमर्ज हो चुका है. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनके आई साइट के इश्यूज होते हैं, वो अक्सर दूर की ऐनक या नजदीक की ऐनक इस्तेमाल करते हैं. समटाइम्स दोनों ग्लासेस जो हैं वो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही होती है. So these contact lens, smart contact lens are solution for that. So अब आप smart contact lens अगर लगा लें तो ये automatically based upon the vision and image automatically understand कर सकता है कि इस वक्त zoom in करना है या zoom out करना है, और उसके जो outside environment है उसके मुताबिक ये जो brightness है, जो लाइट आप इम्पैक्ट कर रही है आपकी आईज को, उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है कि कितनी लाइट आपकी आईज तक जानी चाहिए और कितनी नहीं जानी चाहिए. इसके अलावा रोबोटिक्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं. न्यूज एंकर रोबोट्स बन चुके हैं. हॉस्पिटल्स के अंदर रोबोट्स यूटिलाइज होना स्टार्ट हो चुके हैं. थाईलैंड में, जापान में, चाइना के अंदर इवन सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है इन रोबोट्स को यूज करते हुए. ड्रोन्स एंड ऑटो पायलट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी इमर्ज हो चुका है. आपने शायद टेस्ला का नाम सुना होगा, दैट इज ऑटो ड्राइवर कार. और ऑटो ड्राइवर कार्स जो हैं वो यूज हो रही हैं. इसी तरह से ड्रोन्स हैं. आई वुड मेंशन वन पाकिस्तानी साइंटिस्ट वो इज डॉक्टर नवीद सैयद, और कनाडा के अंदर ये बेस्ड हैं आजकल, और इन्होंने एक चिप इन्वेंट की है और उस चिप की मदद से यू कैन फ्लाई अ ड्रोन जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट. सो जस्ट थिंक दैट यू आर ड्राइविंग ए कार, कंट्रोल आपके पास है लेकिन आप स्टीयरिंग के ऊपर नहीं है, आप एक्सीलरेटर के ऊपर नहीं है, आप ब्रेक के ऊपर नहीं है. यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इन इंक्रीजिंग द रेस एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग द ब्रेक्स, और वो कार आपके कंट्रोल में है और वो चल रही है. सो वन कॉन्सेप्ट इज के ड्राइवर लेस कार्स हों, एंड वन कॉन्सेप्ट इज के विदाउट टचिंग एनीथिंग हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हों. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बन रहे हैं, ड्रोन्स के ऊपर काम हो रहा है कि जो हमारी प्रेफरेंसेस और हमारी थिंकिंग के मुताबिक अलाइंड होते हैं और उसके मुताबिक डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं. इमेज रिकॉग्निशन के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है. आप किसी भी चीज का इमेज लें, उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं. आप इमेज लें, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या आप इमेज लें, उसकी कंप्लीट इक्वेशंस जो हैं वो आपको सॉल्व करके दी जाती हैं. हम थोड़ी सी आगे चलकर इसके ऊपर बात भी कर रहे होंगे. And then there is one concept of smart washrooms. This is the derived concept of smart homes. जिस तरह से स्मार्ट होम्स में ओवरऑल जो ऑपरेशन घर के हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, स्मार्ट वॉशरूम में जो
वॉशरूम से रिलेटेड चीजें हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा होता है कि आपका जो फर्श है वॉशरूम का वो तो वेट नहीं है कि उसकी वजह से कोई इंजरी या डैमेज हो जाए। जो ओडोर है, एयर क्वालिटी है वॉशरूम के अंदर, उसको कैसे कंट्रोल करना है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल करना है। जो डस्टबिन हैं, जो बिन्स लगे हुए हैं, उनके अंदर लेवल कितना हो चुका है, उसको खाली करने की जरूरत है या नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक अलार्म जनरेट कर देता है। जो सोप एंड डिस्पेंसर सेंसर्स हैं वो मौजूद हैं। वाटर मॉनिटरिंग हो रही है, वाटर टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो रही है। सो ये तमाम चीजें जो हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं। नाउ बेस्ड अपॉन दिस एप्लीकेशन पर्टिकुलरली, I used to ask, and I'm taking the liberty to ask one question with you, that if AI can be used in our washrooms and if they can use artificial intelligence even in the washrooms, isn't our classroom the better place कि जहां पर हम artificial intelligence को use करें? So if artificial intelligence can be used in washrooms, then classrooms are the better place to utilize artificial intelligence. सो अगर वहां पर ऑलरेडी यूटिलाइज हो रही है, देन व्हाई डोंट वी अप्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम अपनी क्लासरूम्स को एआई इनेबल्ड क्लासरूम्स, एआई पावर्ड क्लासरूम्स क्यों नहीं बना सकते? एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, इसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा इक्विपमेंट परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें कोई टूल्स बाय करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस होने की जरूरत नहीं है। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स एंड वेरी सिंपल टेक्नोलॉजीज, जिनको जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से ना सिर्फ ये कि हम लर्न कर सकते हैं, बल्कि अप्लाई भी कर सकते हैं। So there is one question about data AI. So I request के हम इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अगर उनको थोड़ा सा आखिर के अंदर डिस्कस कर लें तो फिर इनमें से कुछ चीज़ें यहाँ प्रेजेंटेशन के अंदर आ भी जाएंगी, एंड क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा एंड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस कर पाएंगे माइट बी। सो आई डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन, और ये इंशाल्लाह हमारी स्लाइड के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस भी होगा, तो वहां पर होपफुली आपको आंसर मिल जाएगा इसका। सो जब एआई की हम बात करते हैं और एआई की मदद से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, तो इसके साथ साथ बहुत सारे रिस्क्स हैं, वो रिस्क्स भी क्रिएट हो रहे हैं। एक पोटेंशियल रिस्क की हम बात करें, एंड दैट इज वेरी कॉमन रिस्क एंड इशू जिसके ऊपर बहुत सारे लोग कंसर्न्ड होते हैं। आई वाज इन अ ट्रेनिंग सेशन इन अ यूनिवर्सिटी रिसेंटली। सो वहां पर आई वाज delivering the talk about the importance and significance of artificial intelligence and how we can use artificial intelligence into university teaching. तो मोस्ट ऑफ द टीचर जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर थे, दे सेड वन थिंग कॉमनली कि एआई की मदद से स्टूडेंट्स तो चीटिंग करने लग जाएंगे, या स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होगी, या डिफरेंट जो एफर्ट्स उन्होंने करनी है वो एफर्ट्स उनकी कम हो जाएंगी। दे वर लाइक कि हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, एंड स्टूडेंट कैन जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम चैट जीपीटी, और वो उसको कॉपी करके हमें आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। So I humbly requested one thing to all those teachers, and normally मैं ये आंसर करता हूँ और यहाँ पर भी मैं सेम इसी बात को करूंगा कि ये रिस्क है, तो इस रिस्क के मुकाबले में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं। ऑल दो अपॉर्चुनिटीज की बात बाद में करें, तो रिस्क है, तो यहाँ पर हम क्यों मुसर हैं इस बात के ऊपर कि हम स्टूडेंट्स को अभी भी उसी तरह की असाइनमेंट्स दें, उसी तरह के टास्क हम स्टूडेंट्स के जिम्मे लगाएं कि जिसके अंदर उनसे ये पूछा जा रहा हो कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस लाइक डिफाइनिंग समथिंग, हम स्टूडेंट्स को ऐसे टास्क और ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों नहीं देते कि जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को और उनकी क्रिएटिविटी को इनहेंस किया जा रहा हो। सो जब तक हम ऐसे प्रॉब्लम्स देते रहेंगे, ऐसे टास्क स्टूडेंट्स के जिम्मे लगाते रहेंगे कि जहां पर जस्ट नॉलेज रिकॉल हो रहा हो, तो ऑब्वियसली ये रिस्क यहां पर मौजूद रहेगा। लेकिन जब स्टूडेंट्स नॉलेज रिकॉल टाइप के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली उन चीजों के ऊपर ट्रेन करें, उन चीजों को स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्रेस करें, और वो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने रखें कि जहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो रही हो, उनकी क्रिएटिविटी इनहेंस हो रही हो, और वो प्रॉब्लम्स को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हो। इसी तरह से एक फ्यूचर के अंदर रिस्क ये हो सकता है कि विल एआई इज एआई गोइंग टू रिप्लेस द टीचर्स? अगेन रिस्क मौजूद है। शायद ये रिस्क किसी हद तक
ठीक भी हो, लेकिन अगर एक खतरा मौजूद है तो उस खतरे को इनकाउंटर करने का तरीका ये नहीं हो सकता कि हम वो खतरे को मानने से इनकार कर दें। तो अगर ये खतरा मौजूद है, अगर ये रिस्क मौजूद है कि एआई इज गोइंग टू रिप्लेस टीचर्स, सो माइट बी दिस इज द टाइम टू रीथिंक अबाउट आवर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। Might be we need to redefine what education should we provide to our students in the age of artificial intelligence. So अब भी अगर हम उसी एजुकेशन के ऊपर मुसिर रहेंगे, वही एजुकेशन हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते रहेंगे जो आज से 20, 30, 40 साल पहले की एजुकेशन है, तो माइट भी ये एजुकेशन तो अब बहुत आसानी से जो टूल्स मौजूद हैं उनकी मदद से इसको गेन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ओवरऑल कम्युनिटी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एजुकेशन को, एजुकेशन पॉलिसीज को उनके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएं और रीडिफाइन करें कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। सो रिस्क ऑब्वियसली मौजूद हैं, लेकिन उन रिस्क के साथ अगर हम उन रिस्क का सामना करते हुए चीजों के ऊपर काम करना शुरू करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकती हैं। सो नाउ हमने एआई क्या है उसके ऊपर बात की है, डिफरेंट एप्लीकेशंस को हमने देखा है, डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर एनालिसिस हमने किया है। नाउ अब हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट इन कैसे हो सकती है। सो इसको मैं 3 लेवल्स के अंदर डिफाइन करता हूं। वन लेवल इज द बेसिक लेवल इज लर्निंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Then comes the stage 2, which is learning for artificial intelligence, and the third stage is learning artificial intelligence actually. So जो फर्स्ट स्टेज है, ये स्टेज वो स्टेज है जिसके ऊपर आज हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। So this stage is basically concerned with the administrators and the teachers working in our community. So इस स्टेज के अंदर हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है दैट हाउ वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सपोर्ट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसके अंदर टीचर फेसिंग टूल्स मौजूद हैं, लर्नर फेसिंग टूल मौजूद हैं, सिस्टम फेसिंग टूल्स मौजूद हैं। जब हमारे टीचर्स अवेयर होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, and they will start using artificial intelligence and they will start learning with artificial intelligence, then the time will come for learning for AI. Now यहां पर हम वो स्किल्स जब टीचर्स अवेयर हैं, टीचर्स वेल इक्विप्ड हैं विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, देन वो स्टूडेंट्स को इनेबल कर सकते हैं कि वो एआई के इम्पैक्ट्स के बारे में लर्निंग करें। सो वो ऐसी चीजों को लर्न करें जो उस एआई को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस एआई के ऊपर काम करने के लिए यूज की जा सकती हैं। सो वो एआई के साथ चीजों को अंडरस्टैंड करना और बिल्ड करना स्टार्ट करें। एंड देन फिर हायर लेवल आता है कि जिसके अंदर हम लर्निंग एआई करते हैं, और ये वो लेवल होगा कि जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होंगे जो एआई, डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड्स में जाएंगे और वो एक्चुअली वो एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज उनके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं जो एआई के ऊपर बेस करती हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारा कंसर्न यहाँ पर जो है वो लर्निंग विद एआई का है, और लर्निंग विद एआई के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो क्लास से पहले हम कुछ काम करते हैं, वो हम एआई की मदद से कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लास के दौरान एआई को यूज करते हुए यूटिलाइज की जा सकती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आफ्टर द क्लास की जा सकती हैं। सो अगर हम बिफोर क्लास एक्टिविटीज की बात करें, one very basic thing is that we can use artificial intelligence to brainstorm lesson plans and activities. हमने लेक्चर डिलीवर करना है, उस लेक्चर के अंदर हमें किस चीज के ऊपर कितना कंसंट्रेट करना है, किस चीज को कितना डिटेल में एक्सप्लेन करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर स्टूडेंट्स के सामने रखना है तो उसके लिए कौन सी ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जिनकी मदद से वो कंटेंट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है या वो प्रैक्टिकली स्टूडेंट को समझाया जा सकता है विदाउट इवन गोइंग टू लैब। सो वहीं क्लासरूम में रहते हुए ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनकी मदद से वो कॉन्सेप्ट सिखाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। वी कैन जनरेट दैट कंटेंट फ्रॉम बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको तमाम के तमाम टीचर्स आप यकीनन अग्री करेंगे मेरे साथ, कि एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं क्लासरूम्स के अंदर वो ये कि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट नॉलेज एरियाज। हर किसी का जो स्किल सेट है वो सेम नहीं होता। कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ
जो है वो बिल्कुल ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत लो लेवल के ऊपर होते हैं या जो बहुत स्लो प्रोसेस करते हैं चीज़ों को। अब एज ए टीचर हमें अक्सर ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है कि अगर हम मीडियोकर स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं दे स्टार्ट गेटिंग बोर इन दी क्लास एंड वो कहते हैं कि ये तो कुछ पढ़ाया नहीं गया या मजा नहीं आया इस पढ़ाने में। या अगर हम बिल्कुल ही लो लेवल पर जाते हैं तो ऊपर वाले सारे डिस्टर्ब होते हैं, बहुत हाई लेवल के ऊपर हम जाकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो लो लेवल वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू कस्टमाइज मटेरियल फॉर डिफरेंट स्टूडेंट प्रेफरेंसेस। और ना सिर्फ ये कि जनरलाइज जो प्रेफरेंसेस हैं उनके मुताबिक भी मटेरियल तैयार किए जा सकते हैं, बल्कि हर इंटरेस्ट और लेवल के मुताबिक डिफरेंट मटेरियल भी तैयार किया जा सकता है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा लेकिन स्टूडेंट के नॉलेज एरिया के मुताबिक, स्टूडेंट के बैकग्राउंड के मुताबिक उनको वो चीज समझाने के लिए एआई को यूज किया जा सकता है। सो वो टूल्स कौन से हो सकते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, आगे चलकर हमने डिस्कशन करनी है और इन टूल्स के ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रोस्पेक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और क्या क्या काम हैं जो हम करवा सकते हैं। We can generate common questions to prepare for class. हम guidelines, checklist, rubrics, assignments के instructions ये सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। वर्कशीट्स क्रिएट करवा सकते हैं। इवन कंप्लीट लेक्चर स्लाइड्स जो हैं वो एआई को यूज करते हुए क्रिएट की जा सकती हैं। देन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं टू समराइज द टेक्स्ट। इवन आप कोई कंप्लीट बुक प्रोवाइड कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क एआई कि उस बुक को आप ये भी बता सकते हैं कि 1 पेज समरी जनरेट कर दो, 1 लाइन समरी जनरेट कर दो या 10 पेजेस की समरी जनरेट कर दो। यू कैन इवन कंट्रोल द साइज ऑफ द समरी जो आप चाहते हैं। आप ये बता सकते हैं किन किन पॉइंट्स को इन समरी के अंदर हाईलाइट करना है, किन को नहीं करना। ये सारी चीजें आप वो बता सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द कंटेंट, क्योंकि लेक्चर में जाने से पहले तकरीबन हम में से तमाम लोग ऐसे होंगे जो लेक्चर को रिवाइज करते हैं, लेक्चर को प्रिपेयर करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल डिटेल्स, हम जो क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो गेट करवा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में से कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जो एक्सप्लेन की जानी चाहिए। उस कंटेंट के मुताबिक क्विज़ेस क्रिएट करवाए जा सकते हैं, क्वेश्चन एंड टॉपिक फॉर डिस्कशन जो हैं वो क्रिएट करवाए जा सकते हैं। सो ये सारे के सारे काम हो सकते हैं। इसमें कुछ एथिकल इश्यूज आते हैं बट उन एथिकल इश्यूज को हम लेटर ऑन एंड ऑफ द स्लाइड के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। देन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के अंदर बीइंग ए टीचर, अगर हमें खुद किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है तो वो जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो सकती हैं, जो कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं, वो क्या हैं, डिस्कशन टॉपिक्स, जो स्टेप्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर, वो तमाम चीजें। एंड इवन हम उसको किसी लेवल के बारे में भी बता सकते हैं कि इस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अगर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है तो कैसे किया जा सकता है। एनोलॉजीज क्रिएट की जा सकती हैं, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड आइडियाज जो हैं वो क्रिएट की जा सकते हैं। सो यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ द टास्क जो एज ए टीचर हमें परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ द टास्क। सो इन टास्क को अब कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इसके लिए हम टूल्स कौन से यूज कर सकते हैं। सो अगर हम टूल्स की बात करें, जो लर्निंग विद एआई के अंदर टीचर फेसिंग टूल्स हैं उनके अंदर सबसे पहला टूल जो है दैट इज चैट जीपीटी। यू माइट हैव हर्ड अबाउट चैट जीपीटी, आजकल बज वर्ड है बहुत ज्यादा। और पर्टिकुलरली वो लोग जो अभी रिसेंटली अपनी रिसर्च कंप्लीट की है, जिन्होंने या रिसेंट रिसर्च के फेजेस के अंदर हैं, वो सारे के सारे तकरीबन चैट जीपीटी के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। सो चैट जीपीटी इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स, पर्टिकुलरली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के रूल्स को यूज करते हुए ये डिजाइन किया गया है बाय ओपन एआई इन 2022। और इसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज करते हुए हम एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं। और इस ट्रेनिंग के अंदर बुक्स से वेबसाइट्स, विकिपीडिया, रिसर्च पेपर्स, ऑनलाइन लिटरेचर, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पेजेस का के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसको ट्रेन करने के लिए, चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए यूज किए गए हैं। सो इट इज बेसिकली अ चैटिंग टूल जो हमें अलाउ करता है कि हम एआई के साथ डायलॉग कर सकें एंड वी कैन आस्क एनीथिंग टू चैट जीपीटी और वो आंसर करता है। ये चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं है, इसके अलावा ओपन एआई के अलावा मेटा एआई के बहुत सारे टूल्स हैं। इसके अलावा गूगल का ब्रैड है, उसका चैट इंजन मौजूद है और बहुत सारे चैट इंजन मौजूद हैं। अभी व्हाट्सएप ने अपना एक
चैट सर्विस जो है वो लॉन्च किया। तो इस तरह से ऑल्दो वो उतनी कम्प्रिहेंसिव नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट ऐसे चैटिंग टूल्स हैं वो मौजूद हैं जो यूज किए जा सकते हैं। एंड वी कैन क्रिएट लेक्चर प्लान्स, वी कैन जनरेट समरीज ऑफ टेक्स्ट, वी कैन आस्क चैट जीपीटी टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर्स, वी कैन आस्क चैट जीपीटी टू इवन चेक असाइनमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं, इवन वी कैन यूज चैट जीपीटी टू प्ले अ रोल। ये सारी की सारी चीजें करने के लिए हमें सिंपल करना ये है, वी हैव टू गो टू chat.open.ai और बहुत इजी तरीके से हम अपना अकाउंट उसके ऊपर सेटअप कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू अकाउंट, और अगर आप जीमेल को यूज कर रहे हैं तो जस्ट बाय यूजिंग योर जीमेल आईडी आप चैट जीपीटी को ओपन कर सकते हैं। आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो वेबसाइट पर जाएं, लॉग इन विद जीमेल और गूगल की मदद से लॉग इन करें और चैट जीपीटी को यूज करने लग जाएं। The most interesting thing is the most of the feature of ChatGPT are freely available और इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। One thing that I want to mention here is कि although most of the services जो ChatGPT आपको प्रोवाइड करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेड वर्जन्स की सूरत में मौजूद होती हैं और पेड वर्जन्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं। बट उसकी हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो बेसिक टास्क हमने परफॉर्म करने होते हैं उसके अंदर पेड वर्जन की जरूरत भी नहीं पड़ती। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज कि चैट जीपीटी को अगर आप बहुत रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है, पेड वर्जन है GPT-4, चैट जीपीटी आपको अलाउ करता है, इफ यू आर ए फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ चैट जीपीटी, तो वो डेली आपको 15 से 20 ट्रांजेक्शन दे देता है कि डेली के 15 से 20 क्वेश्चन आप GPT-4 को, पेड सर्विस को यूज करते हुए कर सकते हैं, इवन विदाउट पेइंग एनीथिंग। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड सर्विसेज भी लिमिटेड अमाउंट में परफॉर्म करता है, प्रोवाइड कर देता है। आई एम ए वेरी मच फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ चैट जीपीटी, सो मेरी ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो अब चैट जीपीटी ने तकरीबन 40 टू 50 ट्रांजैक्शन पर डे के ऊपर कर दिया है। सो वो 40 टू 50 ट्रांजैक्शन वो फिल ही नहीं होती। सो विदाउट पेइंग एनीथिंग, इवन आई एम यूजिंग पेड वर्जन ऑफ चैट जीपीटी। सो ये आपके यूजेज के ऊपर है, आप करेंगे तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं वो आपको वहां पर मिलना शुरू हो जाते हैं। सो देर इज वन डेमोन्स्ट्रेशन के चैट जीपीटी की मदद से हम काम कैसे कर सकते हैं। सो मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट यहां पर लिखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर ए 4 year old किड। उसने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए एक टेक्स्ट जो है वो लिख दिया है। अब मैंने इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया कि इसको ट्रांसलेट कर दो उर्दू के अंदर। सो उसने उसी बात को उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर दिया, एंड यू कैन सी कि कितनी फ्लुएंट उर्दू है जो उसने यहां पर ट्रांसलेशन करते हुए लिखी है। ठीक है, जरा सोचो कि तुम झूले पर अपने दोस्त के साथ खेल रहे हो। आप अगर इसको देखें, बिल्कुल कन्वर्सेशनल स्टाइल है जो उसने अडॉप्ट किया है, क्योंकि उसको प्रॉम्प्ट जो मैंने दिया था वो प्रॉम्प्ट इस किस्म का था। यहां पर जब ये टेक्स्ट उसने जनरेट किया, आई इंस्ट्रक्टेड कि इसको और आसान तरीके से समझाओ। उसने उसी एग्जाम्पल को, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आसान तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने उसे फर्दर इंस्ट्रक्शन दी और आसान। अब मैंने कोई डिटेल उसको नहीं दिया है, प्रीवियस सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसके जहन के अंदर मौजूद है, चैट जीपीटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद है, और उसने 3-4 लाइनों के अंदर और आसान तरीके से उसी कन्वर्सेशनल स्टाइल को जहन में रखते हुए आंसर प्रोवाइड कर दिया है। तसव्वुर करो कि तुम अपनी बिल्ली के साथ खेल रहे हो और बिल्ली को हल्का सा धक्का देते हो, बिल्ली भी तुम्हें थोड़ा सा धक्का देती है। अब ये बिल्कुल ही छोटी सी वो एग्जांपल है जो किसी बच्चे को समझाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब और उसके बाद कह दिया कि यही न्यूटन का तीसरा कानून है, तुम धक्का देते हो वो चीज भी तुम्हें धक्का देती है। सो ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो इतनी आसान तरीके से उसने इलेबोरेट कर दी हैं। सो हम चैट जीपीटी को इसी सेंस में यूज कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट हमने डिलीवर करवाना है, कोई भी मटेरियल कंटेंट हमने जनरेट करवाना है, वो इस तरह के प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हुए जनरेट किया जा सकता है। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो अभी रिसेंटली इस जब मटेरियल में तैयार कर रहा था इस ट्रेनिंग के लिए, तो उसके अंदर मैंने गालिब का एक शेर जो है चैट जीपीटी को दिया तशरीह करने के लिए। एंड शेर वाज खामा अंगुश्त बदंदा के उसे क्या लिखिए, नाते का सर बा गिरेबां के उसे क्या कहिए।
इस शेर के बारे में, और थोड़ा सा बहुत ज्यादा तो नहीं, बहरहाल थोड़ा सा मुश्किल शेर है, अगर उर्दू के साथ उतनी ज्यादा फेमिलियरिटी ना हो तो शायद हमारे समझ में इतनी आसानी से ना आए। लेकिन जो लिटरेचर के लोग अगर यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, दे विल सेकंड माय थॉट के जो तशरीह की गई है वो बड़ी हद तक एक्यूरेट तशरीह है और बहुत खूबसूरत तशरीह है इस शेर की जो की गई है। उसने एक एक जो मिसरा है उसकी अलहदा तशरीह किया, उसके बाद मजमूई तशरीह के अंदर जो क्रक्स है उस शेर का वो भी बता दिया है। सो इवन वी कैन आस्क चैट जीपीटी टू ट्रांसलेट और टू एक्सप्लेन एनीथिंग, और वो शेरों की तशरीह, गालिब के शेरों की तशरीह भी कर सकता है। ना चैट जीपीटी को जब हमने यूज करना है, हमने इसका नाम तो सुना है, बट यहाँ पर चैट जीपीटी के नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है जिसके लिए ये सारी डिस्कशन भी अभी तक की है, वो ये कि हम इफेक्टिव वे में चैट जीपीटी को यूज कैसे कर सकते हैं। सर, जो एक कॉमन कंफ्यूजन सुनने में आती है वो ये कि हमने चैट जीपीटी को कोई भी क्वेश्चन कहा और उसने गलत आंसर दे दिया, या उसने जो रिक्वायर्ड आंसर हमें था वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं दिया। इन सारी चीजों की जो सबसे बड़ी रीजन है वो रीजन ये है कि हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट सही तरीके से नहीं दे रहे होते हैं। नाउ प्रॉम्प्ट्स आर द इंस्ट्रक्शंस, आर द कमांड्स जो हम चैट जीपीटी को प्रोवाइड करते हैं, और वो कमांड्स जो हैं, वो कमांड्स अगर सही तरीके से दी जाएं, वो प्रॉम्प्ट्स अगर सही तरीके से दी जाएं, तो हम चैट जीपीटी से जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। सो कुछ सैंपल प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने दिए हैं जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा भी अगर इन फ्यूचर कभी भी आप अगर चैट जीपीटी के से कोई प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं, या आपको नहीं मालूम कि ये प्रॉम्प्ट किस तरह से देना चाहिए, तो एक तो काम आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। इवन यू कैन आस्क चैट जीपीटी टू जनरेट अ प्रॉम्प्ट, वो आपको खुद से प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी जो आपको ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है वो सिखाती हैं। एंड इन द लास्ट, इन द एंड ऑफ द स्लाइड मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। कभी भी इनमें से किसी टूल की अंडरस्टैंडिंग के अंदर या प्रॉम्प्ट लिखने के अंदर आपको कभी कोई डिफिकल्टी फेस होती है या आपको मेरी किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल ट्राई टू असिस्ट यू कि वो जो प्रॉम्प्ट आपने अपने काम करने के लिए लिखने हैं तो वो प्रॉम्प्ट्स आप किस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज जेनेरिक किस्म के प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो कुछ मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, लाइक एडिट दिस पैराग्राफ और ग्रामर मिस्टेक्स, या क्रिएट अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग। उसके बाद जो अंडरलाइन कंटेंट है उसके अंदर मैंने लिख दिया है उस कंटेंट के अंदर, वहां पर आप खुद अपना टॉपिक जो है वो दे सकते हैं डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन के बजाय। जो आपने टीच करना है वो लिख दें, और उसके बाद उसका लेवल बता दें कि ये किस लेवल के स्टूडेंट को आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, वो उसके मुताबिक आपका लेसन प्लान और टीचिंग मटेरियल दे देगा। इसी के साथ साथ आप उसे कह सकते हैं डिजाइन अ हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट फॉर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो आप दे दें, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हैंड और ऑन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बता दे। या आप ये कह सकते हैं कि जनरेट सम क्विज क्वेश्चंस, आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि इस डोमेन के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब क्या है। आप खुद से कोई कंटेंट दे सकते हैं कि इस कंटेंट की एक्सप्लेनेशन कर दे, या इस कंटेंट में से क्वेश्चंस दे दे, और वो क्वेश्चन की नेचर भी आप बता सकते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जनरेट करे, कंप्रीहेंशन या एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जनरेट करे। वो आप खुद अपना कंटेंट देकर भी उसको कह सकते हैं कि अपना नॉलेज बैंक यूज ना करो, जो कंटेंट मैंने दिया है इसी कंटेंट में से क्वेश्चन जनरेट करके दे दो मुझे। You can use ChatGPT to write an application to vice chancellor to give relaxation in submission of dues, and इस तरह से जो बहुत सारी चीजें हैं, लेटर्स, एप्लीकेशंस, वो आप टाइप करवा सकते हैं। इवन यू कैन आस्क ChatGPT टू प्रोवाइड यू अ रेसिपी फॉर चिकन दैट इंक्लूड्स राइस एंड ब्रोकली, और काफी इंटरेस्टिंग किस्म की रेसिपीज जो हैं ChatGPT आपके लिए क्रिएट कर सकता है। सो ये प्रॉम्प्ट देने के लिए कुछ चीजें आप अपने जहन में रखिएगा। इस रूल को मैं सीपीआर कहता हूं। सीपीआर से आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। हार्ट डिजीज जो होती हैं उसमें निज़ाम तनफ़ुस को बहाल करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। अब वही टर्म मैंने यहाँ पर कॉइन की है, विच इज सी स्केयर पी आर। इसमें पहला सी जो है दैट इज क्लैरिटी। आप चैट जीपीटी से जो भी काम करवाना चाहते हैं, राइट योर प्रॉम्प्ट इन अ वेरी क्लियर मैनर। आप एग्जैक्टली उसको बताएं कि आपने क्वेश्चन जनरेट करवाने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट करवाने हैं, समरी करवानी है, एनालिसिस करवाना है।
आपको एक्चुअल रिक्वायर्ड क्या है। सो क्लियरली लिखें, देन उसका कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करें, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें। फॉर इंस्टेंस आपने उसे चैट जीपीटी को कहा कि क्वेश्चन जनरेट करके दे दे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं वो बताएं। आपको नॉलेज रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, आपको एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, वो आप कंप्लीटली उसको डिफाइन करें कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए आपने ये काम करवाना है। देन प्रिसीशन होनी चाहिए। आपको कितने, फॉर इंस्टेंस आप क्वेश्चंस जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप बताएं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आपको जनरेट करके दें। आपने टेक्स्ट जनरेट करवाना है तो आप बताएं कि उसको टेक्स्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। सो आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वो आपको आंसर देगा। एंड फाइनली आप इवन उसको रोल प्ले जनरेट करने के लिए कह सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस मैंने जो प्रॉम्प्ट जनरेट किए उनके अंदर मैंने कहा कि इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स के लिए इसको बता दें। आप ये बताना चाहते हैं कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स का होना चाहिए, इंटर के स्टूडेंट्स का होना चाहिए, अंडर ग्रेड लेवल के स्टूडेंट्स का होना चाहिए। सो वो उसी के मुताबिक उस रोल में रहते हुए आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट टूल जो हमारे पास मौजूद है दैट इज एजिक स्कूल। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इस टूल का भी फायदा ये है कि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो मैजिक स्कूल प्रोवाइड करता है, ये मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं। अलबत्ता इसके अंदर भी कुछ सर्विसेज पेड सर्विसेज हैं। सो बट जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं वो भी इतनी सारी हैं कि उसके अंदर भी अगर हम बेसिक अपने जितने भी काम करवाना चाहते हैं वो मैजिक स्कूल की मदद से भी किए जा सकते हैं। वी कैन यूज मैजिक स्किल्स, मैजिक स्कूल्स, जिसे हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, लेसन प्लान्स, असाइनमेंट्स, पेपर्स, रेलिवेंट एंड पर्सनलाइज्ड कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है जो स्टूडेंट लेवल एंड स्किल्स के ऊपर बेस कर रहा हो। जो टूल्स हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं दैट आर वर्कशीट जनरेटर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम इससे क्रिएट करवा सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल जो इसके अंदर मौजूद है दैट इज यूट्यूब वीडियो क्वेश्चंस। आप जस्ट यूट्यूब की वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दें तो वो उस यूट्यूब की वीडियो की बेस के ऊपर क्वेश्चन जनरेट करके आपको दे देगा। आप इसके अंदर एक और चीज मौजूद है दैट इज रूब्रिक जनरेटर। आप वो यूज कर सकते हैं कि कोई टेम्पलेट दे दें, उस टेम्पलेट के मुताबिक वो पूरी की पूरी असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं वो चेक कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आप असाइनमेंट दे दें तो वो उसमें कॉमन पॉइंट्स को लेते हुए खुद भी एक टेम्पलेट आपको जनरेट करके दे सकता है। उसको यूज किया जा सकता है। एकेडमिक कंटेंट आपने लिखना है किसी भी किस्म का, किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया की बेस के ऊपर, वो जनरेट करवाया जा सकता है। टेक्स्ट डिपेंडेंट क्वेश्चंस जनरेट करवाए जा सकते हैं। आप मटेरियल प्रोवाइड कर दें और मैजिक स्कूल से कहें कि वो आपको इस मटेरियल की बेस के ऊपर क्वेश्चन जनरेट करके दे दे। टेक्स्ट समराइज कर सकते हैं आप उसको यूज करते हुए। इसके अलावा स्टूडेंट्स का असाइनमेंट्स या काम आपने सबमिट करवाया है और उसका आपने रूब्रिक दे दिया, क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है, तो उस कस्टम क्राइटेरिया की बेस के ऊपर वो स्टूडेंट्स का काम इवैल्यूएट, ना सिर्फ इवैल्यूएट करेगा बल्कि उसके ऊपर फीडबैक भी प्रोवाइड कर देगा कि इसने सही काम स्टूडेंट्स ने किया है या नहीं किया। टेक्स्ट को प्रूफ रीड हम करवा सकते हैं। आप टेक्स्ट दिया उसमें स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं वो सारी रिमूव करवाई जा सकती हैं। टेक्स्ट को लेवल किया जा सकता है कि फॉर इंस्टेंस कोई टेक्स्ट है जो बहुत डिफिकल्ट है, फॉर इंस्टेंस आई हैड टू डिलीवर वन टॉक टू अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स ऑन द टॉपिक ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। जो फिजिक्स से रिलेटेड लोग हैं वो इस टॉपिक को जानते होंगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। सो वो टेक्स्ट लेवलर जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड वो टेक्स्ट लेवलर को हम यूज कर सकते हैं कि वो जो क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को वो पढ़ाना है, वो बताना है, सो मैं उनके लेवल के मुताबिक मटेरियल और जो कंटेंट है वो क्रिएट करके उनको दे सकता हूँ। एंड देन यूनिट प्लान जनरेटर हम करवा सकते हैं, यूनिट प्लान कैसे करने हैं। एंड जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि किस डेप्थ के लेवल के ऊपर जाते हुए क्वेश्चन जनरेट करने हैं। समटाइम्स हमारे लेक्चर्स काफी बोर हो जाते हैं, सो कंटेंट की बेसिस के ऊपर हम कुछ जोक्स जो हैं वो क्रिएट करना चाहें वो करवाए जा सकते हैं। स्टोरी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इवन यूट्यूब की वीडियोस को समराइज करवाया जा सकता है। एंड ये सारे काम इसकी मदद से हो सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस अभी मैं देख रहा था जो आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। सो इफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट चैट जीपीटी दैट इज वेरी गुड थिंग। इवन इफ योर सिक्स ग्रेड स्टूडेंट्स और डॉटर्स और चिल्ड्रंस नो अबाउट चैट जीपीटी दैट इज वेरी गुड थिंग। बट द थिंग इज that
कि इसको बेटर तरीके से और ज्यादा प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव वे के अंदर यूटिलाइज कैसे करना है। दैट विल बी वेरी बैड थिंग कि अगर हम ये समझते हों कि हमारे स्टूडेंट्स तो चैट जीपीटी को यूज करते हैं लेकिन हम खुद यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हमें कुछ थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस की और इसके बारे में थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। सो देर इज अनदर टूल विच इज सोक्रेटिक एंड दैट इज वेरी अमेजिंग टूल। एक क्वेश्चन शुरू के अंदर आया भी था कि सोशल स्टडीज से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक हो तो उसके ऊपर कौन सा टूल जो है वो यूज किया जा सकता है। सो सोक्रेटिक इज वेरी वंडरफुल टूल। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, उन सब्जेक्ट एरिया के अकॉर्डिंगली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी इलेबोरेशन, उनकी एक्टिविटीज, उनकी एक्सप्लेनेशन, उसके ऊपर मटेरियल और कंटेंट, वो सारा कुछ सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। इसमें मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो सोशल साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हों, उन सब के वो कंटेंट जो हैं वो हम इस सोक्रेटिक टूल जो है उसकी मदद से ले सकते हैं। आप कोई भी इक्वेशन है मैथमेटिक्स की या फिजिक्स का कोई मसला है या सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स का कोई मसला है या कोई और इस तरह का सब्जेक्ट है, उन तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल भी हमें मिल जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशंस मिल जाती हैं, उसकी एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स भी हमें एक ही जगह के ऊपर मिल जाते हैं। So, one question here is, do we need to learn all these things, all these tools? So, क्या इन सब तमाम के तमाम tools को learn करने की जरूरत है? I suggest no. You can start with any tool. किसी भी एक टूल को यूज करते हुए आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद चैट जीपीटी, यू कैन स्टार्ट विद सोक्रेटिक, यू कैन स्टार्ट विद मैजिक स्कूल। मैजिक स्कूल को सिंपली आप magicschool.ai से एक्सेस कर सकते हैं, सोक्रेटिक को आप socratic.ai से एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल गूगल के ऊपर जाकर लिखेंगे तो वो उनकी वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड कर देता है। सो किसी एक टूल को यूज सेलेक्ट करें और उसको यूज करना स्टार्ट कर दें। वंस यू अचीव मास्टरिंग स्किल्स, आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आप उसको यूज करने लग जाते हैं और उसके ऊपर आपकी स्किल्स जो हैं वो आप अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद आप दूसरे टूल्स की तरफ मूव कर सकते हैं। बट बी अवेयर अबाउट वन थिंग, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें एकेडमिक रिसर्च के अंदर जब हम इन टूल्स को यूज कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप फॉर इंस्टेंस कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिख रहे हैं और रिसर्च पेपर लिखने के लिए आप अगर चैट जीपीटी से कोई कंटेंट क्रिएट करवाते हैं, वो ऑल्दो प्लेजरिज्म के अंदर तो नहीं आता, लेकिन मोस्टली जर्नल्स के बाद पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो इस बात को डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो कंटेंट आपने रिसर्च पेपर के अंदर लिखा हुआ है वो एआई जनरेटेड कंटेंट तो नहीं है। सो वो सिर्फ प्लेजरिज्म की बेस के ऊपर नहीं बल्कि एआई जनरेटेड कंटेंट की बेस के ऊपर भी आपके पेपर को एडिटोरियल के अंदर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो एकेडमिक रिसर्च के अंदर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियसली इसके बारे में चीजों को देखकर वो करें। वन बेसिक आइडिया इज कि आपने अगर रिसर्च वगैरह के अंदर कोई मटेरियल इन एप्लीकेशंस को यूज करते हुए यूज भी किया है, इन एप्लीकेशन से जनरेट करवाया है, तो आप वहां से थॉट्स जनरेट करवाएं और थॉट्स जनरेट करवाने के बाद उसको अपने वर्ड्स के अंदर जब आप लिखेंगे तो फिर वो एआई इंडेक्स के अंदर या प्लेजरिज्म के अंदर नहीं आएगा। सो एकेडमिक रिसर्च के अंदर आप इसको अगर यूज करने लगे तो थोड़ा सा कॉन्शियसली इसको यूज करें, अदरवाइज एकेडमिक दीगर मामला जो हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर उसको यूज किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनमें से ये थोड़ी देर के बाद मैं इनको आंसर दूंगा। एक क्वेश्चन अभी चूंकि इससे रेलिवेंट है उसको मैं आंसर दे दूं कि एआई रिमूवल टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। यस, वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो भी एल्गोरिथमिक वे के ऊपर काम करते हैं, एल्गोरिथमिक वे के अंदर काम करते हैं। तो ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो ये इस बात को जज कर लेते हैं कहीं ना कहीं कि ये कंटेंट जो है वो किसी एल्गोरिदम की मदद से जनरेट किया गया है या ह्यूमंस ने लिखा है, क्योंकि ह्यूमंस जो लिखते हैं वो किसी एक ही पैटर्न के अंदर पूरे का पूरा कंटेंट नहीं लिख सकते। डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट थॉट प्रोसेस जनरेट हो रहे होते हैं, तो हमारा राइटिंग स्टाइल हमेशा थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। सो ये टूल्स ये चेक करते हैं कि ऑटोनॉमी तो नजर नहीं आ रही, ऑटोनोमस किस्म के ऐसे तो वो नहीं है कि उसके अंदर मोनोटनस
तो नहीं है जो कंटेंट हमने जनरेट किया, अगर मोनोटनी नजर आ रही होती है कंटेंट के अंदर तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। सो बाकी क्वेश्चन जो हैं वो फिर इनको थोड़ी देर में मैं डिस्कस करता हूँ। सो इसके अलावा स्टूडेंट फेसिंग टूल्स हैं, असेसमेंट्स हैं, एरिया 9 लाइसियम है, कॉग्नी है, ये स्टूडेंट्स के लिए टूल्स हैं। इसके अलावा अगर एआई एप्लीकेशंस बिल्ड करनी हो तो उसके लिए एलिमेंट्स ऑफ एआई है, एआई फॉर K-12 है, ये टीन्स इन एआई है, ये कुछ टूल्स हैं जो स्टूडेंट्स लेवल के लिए हैं। हमें शायद इनकी जरूरत ना पड़े। मैं अपने क्लासरूम्स के अंदर इनमें से मोस्टली एप्लीकेशन जो हैं वो यूज़ करता हूँ। गूगल स्कॉलर एंड क्विलबॉट को मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। क्विलबॉट टेक्स्ट रिफ्रेजल के लिए यूज़ होता है। जो ग्रामरली है, वो ग्रामरली एप्लीकेशन जो पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं या ग्रामर मिस्टेक्स हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए और रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। सुक्रेटिक बहुत वंडरफुल टूल है, हमने इसकी बात कर ली। चैट जीपीटी की हमने बात की ली। इसके अलावा कोडियम एक टूल है जो प्रोग्रामिंग वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। एंड देयर इज अनदर टूल फोटोमैथ। आप कोई भी इक्वेशन है, अब वो इक्वेशन यूज करने पड़ते हैं अगर किसी कंटेंट के अंदर, तो वो इक्वेशन लिखने के बजाय वो इक्वेशन पड़ी हुई है, तो आप अगर उसकी पिक्चर ले लें तो ना सिर्फ ये कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, बल्कि उसको एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल फॉर्म्स और इस तरह की एप्लीकेशंस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। सो जब हम एआई की बात करते हैं, एआई के एथिक्स की बात करें, देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस। इट कैन अलाउ अस कि हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकें विच आर रियली इंपॉर्टेंट इन आवर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ये हमारे स्टूडेंट्स को वो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आते हैं। देयर आर फ्यू बैड थिंग्स। एआई कहीं ना कहीं जो टूल्स हैं, चैट जीपीटी या मेटा एआई के टूल्स की हम बात करें, इस तरह से गूगल बार्ड की हम बात करें, तो ये टूल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो सोशल इश्यूज हैं या कल्चरल इश्यूज हैं या रिलीजियस इश्यूज हैं, उनके ऊपर कुछ थोड़ी सी बाइसनेस प्रोड्यूस कर सकता है। सो अगर हम जेनेरिक किस्म के क्वेश्चंस करते हैं, जेनेरिक किस्म की क्यूरीज अगर हम करते हैं, तो वो जेनेरिक क्यूरीज को तो आंसर बहुत आसानी से कर देता है। लेकिन सोशल इश्यूज से रिलेटेड समटाइम्स कुछ बाइसनेस जो है वो शो कर देता है। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट कुछ अनहेल्दी हैबिट्स जो हैं वो डेवलप कर लें। हमने ऑलरेडी इसकी थोड़ी सी बात की भी है कि वो लैक ऑफ क्वालिटी हो सकती है उनके काम में, वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टाइम को मिसयूज कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एआई इज ऑलरेडी देयर। हम आंखें बंद नहीं कर सकते, हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हमने स्टूडेंट को मना कर दिया तो वो अब यूज नहीं करेगा। इसके बजाय जो काम हम कर सकते हैं वो ये कि हम भी यूज करें और ऐसे प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करें स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी असाइनमेंट्स और टास्क हम स्टूडेंट के जिम्मे लगाएं कि जिनके अंदर वो इन चीजों को अवॉइड करते हुए रियली वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और काम कर सकते हो। ये टूल्स ऑब्वियसली हेल्प लेने के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो चैलेंजिंग होंगे तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स भी इन चीजों को अवॉइड कर सकते होंगे और इस रिस्क फैक्टर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। देयर इज वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो अभी तक चैट जीपीटी के अंदर भी मौजूद है और बाकी सारे टूल्स के अंदर भी मौजूद है। वो ये कि जब सोर्सेस का मामला आता है, अगर रेफरेंसेस का मामला आता है, तो चैट जीपीटी और इस तरह के टूल्स दे कैन सम टाइम मेक अप सोर्सेस। वो जो इंफॉर्मेशन सोर्स हैं और रेफरेंसेस हैं उनको मेकअप कर लेता है, उनको हेलुसिनेट कर लेता है। सो आई एडवाइज कि जब भी कोई रेफरेंसेस आप जनरेट करवाएं या सोर्सेज की इंफॉर्मेशन आप जनरेट करवाएं इस तरह के टूल से, तो उनको एक दफा क्रॉस चेक जरूर कर लें। बिकॉज क्योंकि वो जनरेटिव मॉडल्स हैं, उन्होंने कहीं से कंटेंट उठाया, वो हो सकता है जो रेफरेंस उसने दिया वो रेफरेंस एग्जिस्ट करता हो, लेकिन इस पर्टिकुलर काम के लिए या उस पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर भी वो रेफरेंस एग्जिस्ट करता है या उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो रेफरेंस यूजफुल है या नहीं, ये हो सकता है कि समटाइम्स हो सकता है ठीक भी और समटाइम्स ठीक नहीं भी हो सकता। सो ये सारे टूल्स हैं, जैसा मैंने कहा एल्गोरिदम्स हैं, सो इनसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होने के चांसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। सो आई एंड दिस डिस्कशन विद one last statement, which is our intelligence, which makes us human beings, and artificial intelligence is just an extension of that human intelligence. So it is
पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये कोई अलहदा से कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस ने ही इसको सिमुलेट किया है और इसको हम अपनी बेहतरी के लिए, मैन काइंड की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देर आर सम रेफरेंसेस, ये स्लाइड्स डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी। कुछ रेफरेंसेस हैं इफ यू वांट टू फर्दर एक्सप्लोर दीज कॉन्सेप्ट्स, तो कुछ रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, यू कैन गो थ्रू देम। एंड दीज आर माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अगेन ये स्लाइड्स वगैरह आपको सारी मिल जाएंगी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके पास मौजूद होंगी। If you need any sort of assistance related to artificial intelligence anytime, you can always contact me. You can write me an email or you can approach through these social media sites, or I'll try my level best to answer any of your queries related to artificial intelligence. So, with that, house is open for any question. अब आप पूछ लीजिए जो भी questions आप पूछना चाहते हैं। एंड टिल द टाइम आपके माइक इनेबल होते हैं, एक दो क्वेश्चन जो ऊपर आए थे वो मैं आंसर कर देता हूं। मोस्टली कमेंट्स हैं। थैंक यू फॉर ऑल वंडरफुल कमेंट्स जो आपने किए हैं। जी, क्वेश्चंस हैं तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैम। Sir, I'm Dr. Noshin from Government Graduate College, Sargodha. Sir, first of all, we are highly impressed by your profile. Your lecture proved the most innovative of our PLT. Sir, कुछ बातों का आंसर कीजिएगा प्लीज कि as you have told that you are an advisor too. तो क्या सर O levels तक का कोई स्टूडेंट जो AI में बहुत इंटरेस्टेड हो और उसको फ्यूचर में इसी को आगे लेके चलने का इरादा हो तो क्या आपसे अटैच हो सकता है? और दूसरी बात ये कि अगर हमारे स्टूडेंट्स ज्यादा और यूनिवर्सिटीज कम हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रही थी, आवाज आपकी ब्रेक हो गई है मैम। आपके फर्स्ट पार्ट का मैं आंसर कर देता हूं, देन इस बताइएगा सर, इसका जवाब दीजिएगा। जी, फर्स्ट पार्ट आपके क्वेश्चन का था जो था वो समझ में आया था। कोई भी स्टूडेंट अटैच होना चाहता है, मेरी किसी भी असिस्टेंट या गाइडेंस की जरूरत होगी, मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी हैं। एनी स्टूडेंट कैन रीच मी आउट एंड आई ट्राई टू हेल्प देम जितना भी मेरे लिए मुमकिन हो उसका। और यूनिवर्सिटीज कम हो रही हैं, मैं कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं समझ सका, जितना मुझे समझ में आया मैं आंसर करता हूँ। यूनिवर्सिटीज वैसे ही कम है। सो ऑनलाइन की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज एंड फैसिलिटीज अभी अवेलेबल हो रही हैं, उनको रीच आउट किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर एआई एरा के अंदर हमें थोड़ा सा चीजों को रीडिफाइन करने की शायद जरूरत पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं बात कर सकती हूँ? जी जी मैम। शफक जाफरी बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट ज़मींदार ग्रेजुएट कॉलेज गुजरात से। सर आपका लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव है और डेफिनेटली ये इसने एक नया जो है पहलू दिखाया है कि स्टूडेंट्स चीट नहीं कर सकते इसके थ्रू, टीचर्स उनको गाइड भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो थैंक्स फॉर दैट। लेकिन मैं एक क्वेश्चन जो करना चाह रही हूँ, आईटी पे बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया में। चैट जीपीटी है, बाकी जितने टूल्स हैं, ये हमें बाहर से बन के हम तक पहुँचे और हमें पता चला कि ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए और कितने टूल्स या इस तरह की कितनी चीज़ें हैं जो की जा रही हैं या मतलब आप इससे रिलेटेड हैं, हो रही हैं, जो हम कह सकें कि हाँ देखिए आईटी में हमारे ये काम है। थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, थैंक यू। मैं पहले इसको आंसर कर दूं प्लीज। काम बहुत सारा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताया है। बहुत सारी जो रिसर्च हम लोग यहाँ पर जीसी के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा काम पाकिस्तान में भी एआई के ऊपर हो रहा है। एंड थोड़ा सा यहाँ पर चूंकि प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अभी उस तरीके की सपोर्ट नहीं है, तो उतनी एप्लीकेशंस अभी हमें नज़र नहीं आ रही। वो कमर्शियल लेवल के ऊपर, वो रिसर्च लेवल के ऊपर, एकेडेमिया लेवल के ऊपर तो बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की कुछ जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है वो सारे काम करने के लिए। वो अभी शायद थोड़ी सी कम है। जी सो दैट कि ये बढ़ जाए। और एक वो आपने जो चिप बताई है नवीद सैयद साहब की, जो कनाडा में गालबन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है वो बेसिकली वो भी ज़ाहिर पाकिस्तानी हैं। तो इन चीज़ों को लेके चलने के लिए भी यानी एक लॉबी ऐसी भी तरतीब दें ना आईटी वाले कि जो गवर्नमेंट से इन चीज़ों को कमर्शलाइज करवाने के लिए भी काम करें।
ताकि कहीं हम भी फखर से Definitely. पेश कर सकें कि देखें हमारे हाँ आईटी में ये काम हो रहा है। चलें, थैंक यू, बहुत डेफिनेटली शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैम हो सकता अस्सलाम है। वालेकुम थैंक यू। सर। वालेकुम जी, सलाम। अस्सलाम जी वालेकुम मैम। सर। अच्छा सर, मैं आपसे एक दो ऑब्जर्वेशंस जो मैंने देखे हैं सर, यूनिवर्सिटीज का तो ये हाल है कि लिटरली आप जहां जहां बीएस हैं, रावलपिंडी में स्पेशली सर, वी आर बेगिंग फॉर स्टूडेंट्स टू कम टू आवर इंस्टीट्यूशंस फॉर बीएस एडमिशंस एंड ऑल, कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे शहरों में शायद ये ना हो, लेकिन मैं अपने शहर की ये सिचुएशन बता रही हूँ। यूनिवर्सिटीज आर देयर, पब्लिक टीचर्स आर वेटिंग कि वो आए। और दूसरा सर, इतना अच्छा आपका लेक्चर था, दिस इज सिल्वर लाइनिंग फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये लेक्चर भी दिखाया। तो सर, थैंक यू वेरी मैं मच। अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में चैट जीपीटी सर मैं 2-3 साल से कह ले यूज इस तरह से कर लेती हूँ। आई एम अ लैंग्वेज टीचर, तो मैं अपने बच्चों को, लेट सपोज मैं सारों को पहले कभी डिबेट्स नहीं लिख के दे सकती थी, 1-2-3 जो मुझे पोटेंशियल स्टूडेंट्स लगते थे, आई यूज टू राइट फॉर देम। अब क्या होता है कि अब मैं सारी क्लास को डिफरेंट गाइडेंस अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स देती हूँ, और सुबह मैं उनको रोल प्लेस करा लेती हूँ, और सारे गेट प्रैक्टिस इन इंग्लिश। और ये इतनी प्यारी चीज है जिससे हम एज टीचर्स, हर कोई अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सर इसको इनकॉर्पोरेट कर सकता है इन आवर क्लासरूम्स। पहले से अगर आप थोड़ा सा सोच लें कि बच्चों को कल से या परसों से हमने कैसा गाइड करना है, और स्टूडेंट्स आर देयर, उनके पास टाइम होता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं लैंग्वेज। सर, ये जो आप, मेरा दिल है कि किसी कोलैबोरेशन में जाना पसंद करेंगे फॉर एचईडी के ये जो ट्रेनर्स हैं, इनको थोड़ा सा एआई जनरेटेड ही लेसन प्लानिंग एंड लर्नर सेंटर्डनेस, सर मुझे लगता है चीजें इससे बहुत क्विक हो जाएंगी। और मुझे ये इतनी भी, देखें फर्ज करें मैं कुछ मांगती हूँ किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है, कल्चरली रिलीजियसली हो सकता है वो चीजें कुछ ना सूट करती हों, लेकिन टीचिंग मेथड्स में जो लेसन प्लान्स आते हैं वो तो सजेस्ट कर सकते हैं ना कि टीचर्स को लर्नर सेंटर्ड कैसे होना है। तो सर, ये तो रातों रात एचडी बदला जा सकता है अगर आप अपना थोड़ा सा वहां से ध्यान रखें। ये आप चेकलिस्ट जो आपने रूब्रिक्स का, वो आप डाउनलोड करें, इनको दे जाएं, और ये अपने जो है ना ट्रेनर्स, उनको कम से कम उन पे चेक्स करते रहें। तो ओके, सर थैंक यू वेरी इसके मच मैम। अलावा, इसके अलावा टीचर्स के साथ अस्सलाम कोलैबोरेट करके असेसमेंट का कोई ऐसा तरीका जो स्टूडेंट का, जिसको कहते हैं ना कि हमारी इंडिजिनस असेसमेंट्स हों। ये मैंने देखा है मुख्तलिफ ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट्स पे, उन्होंने लेवल्स के मुताबिक, यू कंप्लीट 1 लेवल ऑटोमेटिकली यू आर ट्रांस, अगले पे आप चले जाते हैं। तो सर, इस तरह का अपना हम क्यों नहीं कर सकते, अपने सिलेबस से रिलेटेड क्यों नहीं कर सकते? ये सर प्लीज अगर इनमें से थैंक यू। जी। इसमें से अस्सलाम वालेकुम मोस्टली सर। क्वेश्चंस जो हैं वो मैं क्विकली अगर इसको रिस्पॉन्ड कर दूं प्लीज। इसमें से मोस्टली चीजें जो हैं वो चूंकि पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड हैं, और आई एम नॉट इन ए कैपेसिटी टू मेक पॉलिसीज। मैं सजेस्ट कर सकता हूं, हम सजेस्ट करते रहते हैं डिफरेंट लेवल्स पर, एंड वी कैन होप कि इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर काफी कुछ चेंज हो जाएगा। जी मैम, आपका नेक्स्ट जो जी, क्वेश्चन है अस्सलाम प्लीज वालेकुम बताइए। सर। मैं आपसे जो है वो रिकमेंडेशन लेना चाह रही थी कि कंप्यूटर साइंस और एआई के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को पाकिस्तान में, मतलब स्पेशली लाहौर में, कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो आप सजेस्ट करते हैं? प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बोथ, आप प्लीज रिकमेंड करें। मैम, इस तरह से मैं ऑब्वियसली रिकमेंड तो नहीं कर पाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि देर आर प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट। सो ये अगर R&D करें और कोई पर्सनलाइज्ड किसी का क्वेश्चन हो, उसको जहन में रखते हुए तो कोई आंसर दिया जा सकता होगा, जेनेरिक आंसर नहीं है। बट देर आर सो मैनी इंस्टीट्यूट्स, GC यूनिवर्सिटी भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, UET भी है, और भी प्राइवेट सेक्टर में भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत सारा काम करवा रहे हैं। सो पर्सनलाइज ये क्वेश्चन हो सकता है, जेनेरिक शायद मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। मैं डॉक्टर जवेरिया मैं बतूल डॉक्टर बात कर रही हूँ, डॉक्टर जवेरिया बतूल बात कर रही हूँ, ग्रेजुएट। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन लिया से। सर, मैंने ये ट्रेंड देखा है। पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर दिया, थैंक यू। और चैट जीपीटी हम यूज भी कर रहे हैं। सर, मैं ये ट्रेंड देख रही हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा ना अब बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ के कंप्यूटर की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ बॉयज कॉलेज में बहुत ज्यादा एडमिशन कंप्यूटर के थे। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि जो यूज कर रहे हैं ना, मतलब अर्निंग के लिए जो बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, इतने स्कैमर आ गए हैं छोटे छोटे बच्चों को ट्रैप करके, और ये इससे पैसे बन रहे हैं, इधर से पैसे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो ये ना अभी हमारी उसमें IT के जो
लर्निंग बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि अर्न कैसे करना है, बजाय इसके कि हम रॉन्ग वे से अर्निंग के हम इनके कोर्सेज में अगर ऐसी चीजें शामिल कर दें कि फाइवर है, अपवर्क है, और इससे आप कैसे सही तरीके से अर्न कर सकते हैं, क्या रूल्स हैं, कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, वो रॉन्ग में फंस जाते हैं और वो इतने ज्यादा जो है ना उनके फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है। तो सर ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम इनको सही तरीका बताएं कमाने का? अब तो वो नहीं चाहते, शॉर्टकट चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि 24 ईयर्स में जाके अर्न करें। वो चाहते हैं, अब मेरा जो 8 ईयर का बेटा भी कहता है कि मैंने अर्न करना है, मैंने बिटकॉइन में लगाना है। ओके मैम, थैंक यू। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन जो आज की थी, ये डिस्कशन जो आज की थी, ये थी ही इसी टॉपिक के बारे में कि हमारे टीचर्स को जब दुरुस्त रास्ते का पता होगा, दे कैन गाइड द स्टूडेंट्स। टीचर्स आर द मेंटोर्स जिन्होंने एक्चुअली वो करना है। सो जब हमें खुद मालूम नहीं होगा तो अल्टीमेटली फिर हम गाइड भी नहीं कर सकते। सो प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा जी Sir, जी I'm मैम। Dr. Hina from Government Graduate College for Women, Gulbarg, Lahore. Thank you so much for such an insightful lecture. लेकिन सर एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे रेज करना चाहूंगी, एंड आई होप कि डेफिनेटली आपको बहुत से प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पर आप जाकर इतनी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं। आपने ड्रॉबैक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स हमारे साथ शेयर किए, एक अगली आपने इसका पर्सपेक्टिव बताया। मैं उसमें ये ऐड करना चाहूंगी सर, don't you think that the widespread use of AI affected the natural development of learning and curiosity in individuals, particularly our students? Because you know they are when you are potentially leading to a downfall, it is basically potentially leading to a downfall in intrinsic motivation to explore and discover. तो आने वाले दौर में बच्चों का जो एक लैक डेवलप होगा, एक लैक ऑफ मोटिवेशन होगी, एक डाउनफॉल आएगा क्यूरियोसिटी में और लर्निंग में, तो ये इसका एक बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट भी है जिस पे बात होनी चाहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन थी उसके दौरान मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर बात करने की कोशिश की थी, बट ऑब्वियसली फिर हम किसी और तरफ चल जाते, ज़्यादा बात नहीं उसकी थी। ये एक मिथ है, ये एक कंफ्यूजन है कि एआई अगर आएगी या एआई एप्लीकेशंस हम यूज़ करेंगे तो उससे होगा ये कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होगी। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा गौर करें, चैट जीपीटी को जितना भी आप यूज़ कर लें, चैट जीपीटी जस्ट क्या कर रही है, आप उससे कोई क्वेश्चन करते हैं, वो उसका प्रिसाइज आंसर आपको प्रोवाइड कर देता है। इट इज डूइंग नथिंग एल्स देन दैट। सो क्रिएटिविटी को अगर हम किसी हद तक कहें भी कि इससे क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होगी, तो फिर अगेन हमें एज ए टीचर जो हमारा रोल है उसको रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि हम एज ए टीचर वो प्रॉब्लम्स और वो क्वेश्चंस क्रिएट करें कि जिनके अंदर स्टूडेंट्स को एक्चुअली काम करने की जरूरत पड़ रही हो। सो ये चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स, दे आर जस्ट लाइक के स्टूडेंट को ये एक बुक ओपन करता है और उस बुक में उसको लिखा लिखाया आंसर मिल जाता है, तो वो उस आंसर को रीड कर लेता है या उस आंसर को इलेबोरेट कर देता है। सो ये हमें ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, ये एप्लीकेशन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। उस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के दौर में प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्रिएटिविटी डिस्टर्ब हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि उस क्रिएटिविटी को चैनलाइज करने वाले लोग मौजूद नहीं है। फॉर इंस्टेंस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स के अंदर या एआई डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट को कोई कोडिंग असाइनमेंट दी है तो वो कोड चैट जीपीटी से जनरेट करवा कर ले आएंगे और दे देंगे। सो एज ए टीचर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे प्रोग्राम्स दे सकता हूँ जिनमें सिंपल कोड जनरेट करने के बजाय उसकी कस्टमाइजेशन की गई हो। अब स्टूडेंट जितना मर्जी भी कोड जनरेट करवा ले, बेसिक कोड वो चैट जीपीटी से जनरेट करवा ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल काम उसको जो करना पड़ेगा वो उसकी कस्टमाइजेशन के ऊपर करना पड़ेगा, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। ऑडियो में क्वेश्चंस लेने से पहले एक दो क्वेश्चंस कमेंट्स में आए हुए हैं, मैं क्विकली उनको भी आंसर कर दूं। एक क्वेश्चन है, हाउ यू सी द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहिबा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी यूज हो रही है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शन हुआ था जो बाइडेन साहब का, उससे प्रीवियस इलेक्शन में जो ट्रंप साहब जीते थे, डोनाल्ड ट्रंप, वो इलेक्शन ट्विटर की मदद से जीता गया था। उस इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर बॉट्स यूज किए थे जो एनालाइज करते थे पूरे दिन के अंदर अमेरिकन किन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, और उन टॉपिक्स के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो उन टॉपिक्स के हक में बात कर रहे हैं या उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वो सारा एनालिसिस उनके सामने आता था और वो रात को उस टॉपिक के बारे में जो पब्लिक सेंटिमेंट्स होते थे उनके अकॉर्डिंगली कोई ट्वीट कर देते थे, तो अल्टीमेटली पब्लिक सेंटिमेंट उनके हक में आ गया। सो इवन जो लास्ट इलेक्शन हुआ जो बाइडेन का,
उस इलेक्शन के अंदर भी जो बाइडन ऑल्दो जीते थे, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट मेजॉरिटी जो थी वो ट्रम्प साहब के पास था, और वो अभी तक स्टिल उसी तरीके से यूज करते चले आ रहे हैं. सो दैट इज वन यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दी पॉलिटिक्स. इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ पर है प्लेजरिज्म डिटेक्शन का. जो प्लेजरिज्म डिटेक्शन है वो एआई डिटेक्शन भी मौजूद है. टर्निटिंग के अंदर भी एआई डिटेक्शन मौजूद है, और इस तरह के और टूल्स भी हैं जो एआई जनरेटेड टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं. सो इनको अवॉइड करने का तरीका, अगर हम किसी टूल की मदद से इसको रीफ्रेज भी कर देंगे या चेंज भी कर देंगे, even then the best way is to use that content in your own way. आप वही सारी थॉट्स लें बेशक, लेकिन उसके लिए वर्ड्स अपने यूज करें, राइटिंग स्टाइल अपना यूज करें, तो यू कैन अवॉइड दैट. जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी मैम. Sir, what I feel from this discussion is कि जिन आपने मिथ्स की बात की है, एक तो उनको अंडरस्टैंड करना और अब उनको हमें एनालाइज कर लेना चाहिए. क्या चैट जीपीटी जो है वो कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करता है कि जिससे ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसके फर्दर यूज जो है वो रुक जाता है और बच्चों की इंटेलिजेंस अफेक्ट होती है? जो चैट जीपीटी यूजर्स हैं वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है. दो से तीसरी बार जैसे ही आप चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो यू कम टू नो कि उसका एक टिपिकल स्टाइल है, और अगेन आपका प्रॉम्प्ट ही उसको चेंज कर सकता है. इसी तरह प्लेजरिज्म की जो बात है, तो प्लेजरिज्म इज अनदर बाउंड्री जो हमें इसमें नहीं इन्वॉल्व करेगा. एक तो ये बात थी. दूसरा, वो क्योंकि वो रीड हो जाता है. चैट जीपीटी का टेक्स्ट आप जहां भी अप्लाई करें तो कंप्यूटर इज एबल टू जनरेट एंड टेल यू कि हाउ फार आपने चैट जीपीटी को यूज किया हुआ है. तो उस पर भी आपकी ह्यूमन क्रिएटिविटी ही उसको रिफ्रेज करके आपको उस प्रॉब्लम से निकालती है. इसी तरह से सर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि क्या हमारा सिलेबस ही और हमारा टेक्सचुअल कंटेंट ही वो चीज़ नहीं है जो हमारे एआई यूज में रुकावट है और सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है? सर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो हम एफए के लेवल पर एफएससी को जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं उसमें हम चैट जीपीटी को क्या यूज करें कि जिसमें हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि ये बताइए कि मिस्टर राल्सन ने मिस्टर चिप से क्या कहा. सर यूज ऑफ एआई तो बड़ी दूर की बात है, उसमें यूज ऑफ ब्रेन भी नहीं है. तो इम्पोर्टेंट ये बात है सर, एचईटी को एआई का यूज सिखाइए, एचईटी को कोई रिकमेंडेशंस दे और बेसिक कोर लेवल पर जाकर टेक्सचुअल कंटेंट को और करिकुलम को रिवाइज करने की जरूरत है. इसी तरह से सर जो बीएस की बड़ी इनोवेटिव डिग्री हमने अभी रखी हुई है और हम उस पर इतना बच्चों को फाइनेंशियली बर्डन करके वो डिग्री दे रहे हैं, आई एम सॉरी टू से कि उस डिग्री के बाद ना तो बच्चियों में ना कोई लाइफ स्किल्स आ रही हैं, ना ही दे आर एबल टू अर्न, और उसका स्कोप भी लिमिटेड है. तो देयर इज यूज टू rephrase, renew, and we need to work on our curriculum and textual content and our syllabus. This is the basic thing. हम नहीं align with sir. Thank you मैम. इनमें से मोस्ट बातें वो थी जो मैं ऑलरेडी कर चुका था कि हमें शायद रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, शायद नहीं, हमें यकीनन रीडिफाइन करने की ज़रूरत है अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को. अलबत्ता इन सारी चीज़ों के जवाब में एक शेर मैं ज़रूर वो करूँगा कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. सो वी आर lighting our candles, and I request you all to light your candles as well. Maybe someday ऐसा होगा यकीनन कि हम भी कुछ इम्प्रूव हो जाएंगे इंशाल्लाह. सर एक जेन्युइन हेल्प चाहिए. सर एक जेन्युइन, आपने कहा कि हम अपने थॉट्स को उनकी थॉट ले लें और वर्ड्स अपने दे दें, बट इफ द केस इज अदरवाइज, like we are not native speakers, so sometimes we have our thoughts, but we think it right कि हम उसे जो है ना थोड़ा सा नोक पलक दुरुस्त कर लें, तो फिर तो ये मुझे लगता है कि हम अपने आप को खुद ही ट्रबल में एक तरह से इंडल्ज कर रहे हैं. So what's your take on? नहीं मैम, ऐसा नहीं है. अगर आपके पास थॉट्स मौजूद हैं एंड यू नीड वर्ड्स, तो आप उसको एक दफा वर्ड्स में लिख लें, चाहे जितनी भी गलत इंग्लिश हो, कोई मसला नहीं है उसका. हमारे पास एक टूल मैंने अभी आपको बताया, ग्रामरली. उस ग्रामरली को जब आप देते हैं वो आपका राइटिंग स्टाइल भी ठीक कर देता है, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स खत्म कर देता है, उसमें लैंग्वेज की जितनी मिस्टेक्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और वो एआई इंडेक्स भी उसका डिटेक्ट नहीं होता, क्योंकि बेसिकली थॉट्स आपकी रहती हैं, वो थॉट्स चेंज नहीं होती, वर्ड्स आपके रहते हैं वो चेंज नहीं होते, सिर्फ उसकी राइटिंग मिस्टेक्स जो हैं वो उनको रिमूव कर देता है. Thank you.
जी सर, एक जो मुझे मुश्किल आई, मैंने ये गूगल फॉर्म पे रिसर्च जनरेट की और सर उसके जो मेरे रिस्पोंडेंट्स थे वो मास्टर ट्रेनर्स थे। अब उन्होंने क्या किया, सेम क्वेश्चन उन्होंने चैट जीपीटी में डाला, ठीक है, दे गॉट द रिस्पॉन्सेज और फिर वो उन्होंने मुझे सेंड कर दिए उसको फिल करके। तो सर ये तो फिर जेन्युइन रिसर्च ना हुई। तो ये आप एज अ रिसर्चर आप देखते हैं, तो इसके बारे में आप मुझे गाइड करें कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था। Sorry to मैं interrupt. यहाँ पे जी मैम Thing that I need to mention, it is the attendance that we are much bothered in our colleges. Is there any tool that can help us with the attendance, because a lot of time is wasted in taking the attendance of students. ओके, मैं दोनों क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूँ। पहले तो ये अटेंडेंस वगैरह की हम बात कर लें। अटेंडेंस और टाइम टेबल मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं। इफ़ यू कैन प्लीज़ राइट मी एन ईमेल, तो जो टाइम टेबल के लिए टूल है एक, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। इसलिए इसी तरह से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स बने हुए होते हैं, वो आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए ऑटोमेटिकली आप विद इन अ मिनट अटेंडेंस लग सकती है, या स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद भी अपनी अटेंडेंस उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं। इवन ये जो गूगल फॉर्म्स वगैरह हैं, इनको यूज करते हुए भी अटेंडेंस के प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी हद तक रिजॉल्व किए जा सकते हैं। सेकेंडली, जो क्वेश्चन था जेन्युइन रिसर्च का, तो मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट सा आंसर दूंगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने उस रिसर्च का करना क्या है। अगर आप वाकई एकेडमिक रिसर्च कर रही हैं टू मेक सम कंट्रीब्यूशन, तो यस, ये आंसर जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते और इनको आपको रीएनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी। सर वो मुझे बट ट्रू अगर वो पिक्चर सिर्फ तो नहीं दे रहे प्रमोशन, थे। आई वांट नो कोई प्रमोशन नहीं, जेन्युइन जी जी, रिसर्च। और सर मैं जेन्युइन जेन्युइन रिसर्च बहुत के लिए जी एक्सेप्टेबल नहीं है, जी एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं है। क्योंकि आई वांटेड टू सी द ट्रू पिक्चर के ये जो टीचर्स हैं इनका नॉलेज कितना है। अब वो मुझे चैट जीपीटी जनरेटेड रिस्पांस व्हिच इज एन एग्जैक्ट रिस्पांस, तो मेरी रिसर्च तो गई ना, वो मतलब मुझे उस पर कुछ नहीं करना। आई जस्ट वांटेड टू नो कि लेवल क्या है, तो ये क्या करें फिर। एक्चुअली मैडम, पाकिस्तान के अंदर चूंकि हमारे वो रिसर्च कल्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बने हुए, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। बहरहाल ये चूंकि हमारी उससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल कमेंट नहीं कर पाऊंगा, एंड टाइम भी ख़त्म हो रहा है। सो लेट मी थैंक यू ऑल वेरी मच। It was a very wonderful session as a presenter myself, and I really enjoyed talking to you all, respectable colleagues. And once again, thank you very much. And secondly, I congratulate you all for your upcoming promotion, and I wish all the very best to you. Inshallah, आप सारे लोग जो हैं वो प्रमोट होकर नेक्स्ट स्केल्स में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड स्टिल इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट। थैंक यू जी। सर दा माइक बंद करता किन्ना तक ब्रेक हुई उन्होंने क्या है बीबीए के तो मसले ही नहीं खत्म हुए। मैं 25 साल से ब्रिटिश काउंसिल ने सही किया ना, वो गल्ला ना करो, कल जाके वेखो सर पक्खा कोई नहीं, उस्ताद दे बहना से कुर्सी कोई नहीं, ये वाली गल्ला करो है जेड़े प्रैक्टिकली है। साहब प्लीज 15 मिनट की ब्रेक असर की नमाज के लिए दिलवा दीजिएगा। Yes.